ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾತೀಯತೆ, ಮೇಲು ಕೀಳು, ಹಲವು ದೈವಗಳು, ಹಲವು ಮೂಢ ರೂಢಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಜ್ಞಾನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಮಾನವ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ, ಕಂಬವಿಲ್ಲದ ದೇವಾಲಯ. ಇಂತಹ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾನವ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿನ ನದಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿನ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಅರಣ್ಯಗಳು, ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದವರು ಈ ಜಗತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಿಜ್ಜಳ ರಾಜರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ, ದಯವೇ ಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದವರು ಏಕೈಕ ನಾಯಕ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆ ಶರಣರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಶರಣರ ವಚನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಾಳಲು ಬರುತ್ತದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತ ದೇಶ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನಂತರ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿರವರನ್ನ ವಿಶ್ವ ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಿಳಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಬಲವನ್ನು ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುತಡಿ ಇಂದ ಅವಾಗ ಯಾವುದೇ ವಾಹನಗಳು, ಯಾವುದೇ ರಸ್ತೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಚನಗಳನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಲೋಕದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವಿಶ್ವ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು ಸಕಲ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವ ಭೂಮಿ, ಶರಣರ ನಾಡು, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರ ವಚನ. ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ದೇಹವೆಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯವರ ವಚನ. ಹಗಲು 4 ಜಾವ ಅಸನಕ್ಕೆ ಕುದಿವರು, ಇರುಳು 4 ಜಾವ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಕುದಿವರು. ಅಗಸ ನೀರೊಳಗಿದ್ದು ಬಾಯಾರಿ ಸತ್ತಂತೆ ತನ್ನ ಒಳಗೆ ಇದ್ದ ಮಹಾಘನವನ್ನ ಅರಿಯರು ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಜನರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ದೇಶ ಇನ್ನೂ
ಬಹಳಷ್ಟು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಡತನ, ಬಡತನದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರದೆಂದರೆ ನಾವು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯರವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಿಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ದೇಹವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯರವರು. ಹಗಲು 4 ಜಾವ ಅಸನಕ್ಕೆ ಕುದಿವರು. जैसे कि सवेरे हो गए, उठते बराबर घर का बच्चों का उसका फिक्र रहने दो, ज़रूरी है, नहीं बोलकर नहीं बोलता हूँ मैं, लेकिन उठते बराबर जिसने हमको जिंदा रखा है इस शरीर को, जिसने इन 5 इंद्रियों से हमको दुनिया दिखा रहा है, जिसने हम इस धरती का खाना, हवा, पानी, ये सूरज का चांद, ये सितारे, ये सब कुछ, ये धरती के ऊपर सुंदर, देखो कितना अच्छा है, इतना सबको इसको पालने वाला सबको कौन है? वैसा भगवान को अगर दुनिया में कोई सच्चाई बताया है तो बसव कल्याण के धरती पे 12वीं शताब्दी में अक्का महादेवी, बसवण्ण, सिद्धरामेश्वररವರು, अल्लम प्रभुजी, चन्न बसवण्ण, सत्यक्का, संकव्वा, कश्मीर का राजा, उनकी जो उनका कुटुंब के साथ आए थे, महादेव और महादेवी को। अफगानिस्तान से मरुल शंकर देव, मतलब उन्होंने सूफी से, उन्होंने मुस्लिम, उन्होंने भी बसवण्णा जी का अनुभव मंडप के अंदर आकर विचारों को चिंतन करके उन्होंने भी ईशान्य पे विभूति, गले में लिंग, इष्टलिंग डाले। तो ये बार बार मैं क्यों बताता हूँ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, सच्चाई को समझो। ये भगवान के चक्कर में आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा तुम्हारा जेब खाली होगा और कामचोर लोग बनेंगे, झूठे बोलने वाले लोग ज़्यादा होंगे, क्योंकि झूठा भगवान का पीछे पड़े तो हम भी झूठा हो जाता है। उसके बाद में अंदर का मालिक हंसता है, मैं इतना बड़ा शरीर को तुमको दुनिया दिखा रहा हूँ, लेके फिरा रहा हूँ, अंदर रह करो, फिर भी मेरे को नहीं मानते तुम बाहर ही फिरते ना। ये बहुत बड़ा इस शरीर के अंदर का मालिक के साथ धोखा करने का जो चल रहा है ना, इसीलिए तो ज़्यादा लोगों को टेंशन, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक बीमारी हो रहा बोलकर मैं शरणों का, वचनों का किताब पढ़ने के बाद में मुझे मालूम हो गया है। अब ये 26 साल हो गए, ऐसा छोटे छोटे वचन के विचार है ना, ये सब लोगों को बताए तो उनको भी थोड़ा मालूम होना बोल के मेरा उतना ही एक विनंती है। इरुಳು 4 ಜಾವ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಕುದಿಯವರು, जैसे कि दिन निकल गए, शाम हो गए, फिर दूसरा दिन का फिक्र, कैसा करना, कितना पैसे कमाना, बच्चों को कैसा पालना, एक के बाद एक, लेकिन अंदर कभी याद नहीं करते लोग। कहाँ जा रहा है भगवान? सिर्फ बाहर, मानव निर्मित, वहाँ भगवान है, वहाँ असली भगवान तो बसवा कल्याण के शरणों ने दिखाया है। इष्टलिंग के साथ तुम्हारा भगवान तुम्हारा अंदर है, तुम्हारा शरीर ही दुनिया का एक बहुत बड़ा मंदिर है। जितना शरीर बड़ा है ना, इतना ही बड़ा दुनिया का मालिक हमारा अंदर है बोल के बताया ना। क्या झूठ है क्या? कोई तो बताओ, सोचो जरा, सोचो, बताओ कोई तो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, वचन के किताब पढ़िए, पूरे आप लोगों का ये अज्ञानता का कचरा सब चले जाएगा। और हर गांव में अनुभव मंडप की जरूरत है, वहाँ पर ऐसे वचनों का चिंतन करे, प्रार्थना करे, इष्टलिंग ध्यान करे तो। और ನಮ್ಮ ಅರಿವೇ ನಮಗೆ ಗುರು, ನಮ್ಮ ದೇಹವೇ ನಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ये सब बोले ना। तो मैं अगस ನೀರೊಳಗಿದ್ದು ಬಾಯಾರಿ ಸತ್ತಂತೆ, जैसे कि धूप के दिन में कपड़ा धो रहे, समझो कोई भी, उस वक़्त पानी का प्यास लगता है। पूरे गंदगी का कपड़ा हम धोते, जब तालाब में धोते थे ना, इससे पहले हम लोग, गंदगी हो जाता, पानी का प्यास बहुत लगे और दूसरा पानी कहाँ भी नहीं मिल रहा। अगर वही पानी पिएंगे
तो क्या होगा, उल्टी संडास होगा और जान को खतरा भी होगा, हो सकता है। तो अब माहौल ऐसा उदाहरण क्यों दिया अक्का महादेवी बोले तो, हम सवेरे से शाम तक, शाम से दूसरे दिन सवेरे, जिंदगी भर खाली हमारे खाने का, कपड़े का, घर का, बच्चों का, वो ये 24 घंटा उसकी फिक्र में रहते, लेकिन अंदर का मालिक को ये लोगों डायरेक्ट अंदर का मालिक को याद नहीं कर रहा है ना ये लोग। तो ये सच्चाई दुनिया के अंदर अगर कोई बताया है तो बसवा कल्याण की धरती पे 12वीं शताब्दी में अनुभव मंडप के अंदर अक्का महादेवी बताया है ये वचन। तो ಅಗಸ ನೀರೊಳಗಿದ್ದು ಬಾಯಾರಿ ಸತ್ತಂತೆ ತನ್ನ ಒಳಗೆ ಇದ್ದ ಮಹಾಘನವನ್ನ ಅರಿಯರು चन्ना मल्लिकार्जुन देव। महाघना, जितना बड़ा दुनिया है, ये पंच महाभूत से बना हुआ ये दुनिया, इस दुनिया के से ही हम पैदा होकर आते। माँ की गोद में मूर्ति बनाया सो वाला कौन है? इसीलिए तो भगवान शरणों ने बोलते हैं ना, ये शरीर को छोड़कर भगवान नहीं है। हाँ? तो माँ की गोद में उनको बनाया सो वाला मालिक है, पालने वाला मालिक है, सबको एक साथ बनाया सो वाला मालिक है। तो ये जात पात ऊंच नीच ये बहुत सारे भगवान हैं जो लोग बनाए ना, मैं डायरेक्ट कहता हूँ, वचन पढ़ने के बाद में मुझे मालूम हो गया, देश का दुश्मन अगर कौन तो है तो ये जितने भी भगवाना ज़्यादा बना के लोगों को अज्ञानता में ढकल कर अपने स्वार्थ का लिए ये कर रहा है ना झगड़ा 10 साल से। असली देशद्रोही लोग कौन होते? जो महात्मा बसवण्णा जी जाति रहित बिना कास्टिज्म के जो बनाया उस अनुभव मंडप का विचार 25,000 वचन है अभी भी। ये सब मालूम है, क्यों भाई? पढ़ना चाहिए ना, पढ़कर आचरण में लाना चाहिए ना, तो दुनिया को बताना था ना। खाली बसवण्णा जी का मूर्ति उद्घाटन करे, बाहर जाके देश के अंदर जाकर बसवण्णा जी का बात करे, अम्बेडकर जी का बात करे, उनका विचार को पूरा उल्टा कर रहा है ना, उनका विचार आचार को उल्टा कर रहा है ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या पूरे भारत देश के अंदर सब लोग अज्ञानी है समझ रहे क्या आप लोग? पढ़ने वाला लोग भी है, लेकिन देश का भलाई के बारे में सोचो। सिर्फ भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी भी बसवण्णा जी के फॉलोअर थे, उन्होंने भी, मैं उनका किताब पढ़ा हूँ, भारत के संविधान किताब पढ़ा हूँ मैं भी, 22 प्रतिज्ञा लिखे उन्होंने भी। जितने भी अंधकार है, अंधा रूढ़ी है, ये मूढ़ रूढ़ी है, ये पूरे उन्होंने भी नहीं मानते थे भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, विश्व संविधान के नायक महात्मा बसवण्णा जी और भारत के संविधान के नायक भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हमारा भारत देश के पूरे लोगों को साथ में लेकर चलने का एक विचारधारा है। इस विचारधारा को फॉलो करो और छोटे युवक लोग, बच्चे बुरे रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, सच्चाई को सपोर्ट करो और एक भव्य भारत बनेगा, एक अच्छा सुंदर भारत बनेगा। यहाँ पर के बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी, ये भूखमरी, ये सब चले जा सकता बोलकर मैं गारंटी के साथ बोलते हुए लास्ट में आप सबको अच्छा लगा तो भारत देश के अंदर रहने वाले 150 करोड़ जनता को हमारा विश्व ज्योति अक्का महादेवी का वचन आप लोग इसके बारे में सोचिए और थोड़ा तो आचरण में लाए तो अच्छा भला होगा, सबका कल्याण होगा बोलकर मैं इतना बोलते हुए लास्ट में बसवा कल्याण की ज़मीन से पूरे मेरे भारतवासियों को सर झुका कर मैं शरण करता हूँ।